Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banyan Academy. Moodle tutorial series के आज के वीडियो में we are going to learn that how you can create backups and restore those backups uh, uh, of your courses actually. So इसका first of all मैं आपको use बता देता हूँ. So कई बार ऐसा होता है कि you have created different courses and उन courses में you have taken a lot of quizzes, you have given certain study materials, okay, and if you do not try to take the backup and then use that backup, then आपको फिर से एक नया कोर्स बनाना पड़ेगा, वो सारे quizzes फिर से create करने पड़ेंगे, okay. So sometimes what happens that you want to use those quiz questions or those study materials in your next curriculum, next year's curriculum, okay, or next semester's curriculum. So in that case, what you can do is you can take the backup, and whenever it seems suitable to you, you can just restore your backup, or you can just upload your backup to create a new course wherein all those quizzes, all those study materials are there for you, okay. Second thing is, see, Moodle is a server, correct? Maybe possible some problem occurs, and if in that case wherein some problems are coming, so you may lose your course materials or the materials related like quizzes and your exams, okay, your materials, okay. So it's always like na ki whenever you lose your materials, you can always upload, fine, but you are doing redundant work over here. So if it is already there, then you can just utilize it for your next year's or next semester's curriculum, ठीक है. तो इसके लिए ये दो रीजंस है जिनके कारण हमें बैकअप कैसे लिया जाए ये पता होना चाहिए, ओके. सो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मल्टी एजेंट सिस्टम्स एक कोर्स है, ओके. मैं उस कोर्स में जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एंड टर्म एग्जामिनेशन लिया है, कोर्स इंफॉर्मेशन फाइल अपलोड किया है, मेरा मैंने कुछ टर्म पेपर, कुछ क्विजेस, कुछ मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ओके. आप देख सकते हैं लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड. आई हैव आल्सो uploaded some PPTs and a quiz also. So there are a lot of quizzes, some PPTs are there, some course information files are there, and some exams are there. I would like to use those examinations and those materials in my next year's or next semester's curriculum. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं, राइट टॉप गियर आइकन है जो कि हमारा सेटिंग्स का आइकन है. आप उस कोर्स में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो बैकअप पे क्लिक करने से एक नए पेज पे आप आते हैं जहां पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट सेटिंग्स दी गई है, ओके. सो फर्स्ट यू हैव टू डू इनिशियल सेटिंग्स, देन स्कीमा सेटिंग्स, okay. Schema means structural settings, then confirmation you have to do and perform backup, and then it is complete. So we are at the first level, that is your initial setting. So you look over all the settings. आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी कोर्स का बैकअप लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आपने आपके एनरोल्ड यूजर्स हैं, दे विल नॉट बी बैकड अप. एनोनिमाइज यूजर इंफॉर्मेशन है, दे विल नॉट बी बैकड अप. सो बाय डिफॉल्ट उसको लॉक करके रखा गया है, ओके. तो इट्स अ गुड थिंग ना, बिकॉज नए कोर्स में, नए ईयर, नए सेमेस्टर के नए कोर्स में नए यूजर्स आते हैं, ओके, नए स्टूडेंट्स आते हैं जो एनरोल करते हैं. सो वाई टू यूज द बैकअप, और वाई टू टेक द बैकअप ऑफ दोज यूजर्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर कोर्स, ओके. So these two are automatically locked. Okay. Now you want to include user role assignments, activities and resources. So by default, some of the options are checked. Okay. You want to include comment, you want to include badges. So जो आपको इसके अलावा चाहिए, आप सारी चीजें जो है आप अपलोड कर सकते हैं, ओके. कोर्स लॉग, ग्रेड हिस्ट्री, ठीक है. सो मैं बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास मुझे मूडल ने दिया है, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ. बिकॉज आप देख सकते हैं ग्रेड हिस्ट्री मुझे कोई यूज नहीं है नेक्स्ट सेशन में. Course log, no use to me. User completion detail, no use to me, because new users will be coming. Comments and badges, they are of no use to me. User role assignments, no use to me, okay, because new users are coming. But other files like files, blocks, activities, resources, filters,
calendar events, question bank. Okay, these most important part is your question bank, and these all are of use to me. Okay, so we will just go and click on next. अब आप कहाँ आ गए? आप स्कीमा सेटिंग्स में आ गए हैं। स्कीमा सेटिंग्स में क्या सेट होता है? आपका स्ट्रक्चर सेट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैं मेरे इस सेमेस्टर के या इस सेशन के कोर्स में था, मुझे वैसे का वैसे ही बैकअप मिलेगा फॉर माय नेक्स्ट कोर्स। ओके, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप देख सकते हैं दीज आर ऑल लॉक्ड, यू कैन नॉट चेंज दीज थिंग्स। ओके, तो आपको ऐसे ही का ऐसे स्कीमा जो है आपको मिलेगा। सो बेसिकली दिस ऑल प्रोसेस व्हाट वी आर गोइंग फॉर इज वी आर जस्ट रिव्यूइंग what is going to be backed up. Okay, so what is the name of the file? Would you like to give some other name to the file, or else uh, just इसी नेम के साथ जो आपको Moodle प्रोवाइड करता है आप जा सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जो आपका बैकअप होता है वो .mbz फॉर्मेट में होता है। ओके, इसको आप याद रखिएगा। ओके, आप इसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। ओके, कि what are the things that are going to be backed up, and then you will just click on perform backup. You can see the message यहाँ पे लिखा हुआ है the backup file was successfully created. Okay, now what we need to do is we need to click on continue. जब आप continue करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है that is called import a backup file. Okay, सो इम्पोर्ट अ बैकअप फाइल का जो ऑप्शन आता है इसमें क्या है बेसिकली कि आपके पास जो बैकअप फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी बैकअप फाइल अवेलेबल नहीं है। मैं ये इंपोर्ट कब करूंगा? जब मैं नए फाइल को बनाऊंगा, नए कोर्स को बनाऊंगा, एंड उस कोर्स में मैं इस बैकअप को चाहता हूँ, लेट अस सपोज। सो इन दैट केस आई नीड टू just means import this particular backup. Okay, so currently my backup is ready. What I need to do is I need to download it. Okay, you can see the size of the file, okay, and the name of the file, and I need to click on download. So आप देख सकते हैं मेरा ये बैकअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप फाइल .mbz फॉर्मेट में है। ओके, जस्ट टू रिव्यू हम एक और बैकअप लेके देखते हैं ताकि आपका ये ब्रश अप हो जाए स्किल कि हाउ टू टेक द बैकअप। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू द होम पेज और आवर डैशबोर्ड पेज। सो वन मोर फाइल इज देयर और कोर्स इज देयर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पे गियर आइकन पे क्लिक करता हूँ, बैकअप पे क्लिक करता हूँ, and then what I can do is I will just review my initial settings. Okay, I am fine with it. Click on next. Okay, I am fine with everything. Okay, and then click on next. Confirmation and review. मैं एक बार review कर लेता हूँ कि what are the things which are going to be backed up, and then click on perform backup. So backup was successfully created. I will click on continue एंड आई विल गो डाउन। आप देख सकते हैं मैंने दो फाइल के बैकअप लिए हैं तो मुझे, या दो कोर्स के बैकअप लिए हैं तो मुझे क्या दिया हुआ है, वो दोनों के नाम दिए हुए हैं। या मल्टीसिस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड SWE, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस फोल्डर में दो बैकअप होंगे, एक मल्टी सिस्टम्स के और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। मेरे पास क्या है, दो बैकअप रेडी। अब अगर मुझे फिर से उन बैकअप्स को इंपोर्ट करना है तो एक तो ऑप्शन आपको जब कंटिन्यू आपने क्लिक किया था बटन पे तो आपको वो ऑप्शन आ रहा था कि यू कैन इंपोर्ट द बैकअप। व्हाट अदर ऑप्शन इज डू वी हैव? जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। आप जैसे कि गियर आइकन पे जाके बैकअप पे क्लिक किए थे, आप रीस्टोर पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, जब आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको इंपोर्ट अ बैकअप फाइल का ऑप्शन आता है। आप चूज कर सकते हैं फाइल। आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो बैकअप फाइल है इट शुड बी ऑफ मैक्सिमम फाइल साइज 50 MB। ओके, वो हमारा तो है, बट जस्ट फॉर सेक नाउ दिस कैन बी चेंज्ड। अब जो मॉडल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस हिसाब से यूज करते हैं
वो उसका साइज उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, सो जब मैं इस पे ओपन करता हूँ तो यू कैन अपलोड दिस फाइल। अभी अपलोडेड फॉर्म में आ गया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा सो इट विल बी रीस्टोर्ड। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन रीस्टोर, ओके, because it is already there with me, but just for the sake to let you understand, I have just given this particular option, and so that you can understand the whole process. Okay, so this is what I would like to convey to you in this particular video. इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाया हूँ कि कैसे आप बैकअप ले सकते हैं। यू कैन रीस्टोर द बैकअप, यू कैन इंपोर्ट द बैकअप, ओके, एंड देन यू कैन डू द नॉर्मल ऑपरेशन। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो आप बैकअप लेके क्विज़ेस आपके पास मिल रहे हैं, पहले क्या होता था कि जब आप क्विज क्रिएट करते हैं तो आपके जो करंट फॉर्म है उसमें वो क्विज अटेम्प्टेड है बाय सम स्टूडेंट्स, सो वो क्विज क्या होगा, अटेम्प्ट्स आपको शो होंगे। लेकिन जब आप नए बैकअप्स लेके एंड उसको रिस्टोर करके नए कोर्सेज में आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे आपको अटेम्प्ट्स नहीं दिखाई देंगे, ओनली योर क्विजेस विल कम। ओके, सो यू कैन जस्ट यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर क्विज फॉर न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स or new enrolled users. Okay, so till we come up with next topic of Moodle, thank you very much for listening to me. Have a nice day.